اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بے شمار اور لاتعداد نعمتیں عطا فرمائی، لیکن ہم اپنی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو بہت ساری نعمتیں ملی، انہوں نے بڑا اچھا، بڑا سہانا، بڑا وقار والا، بڑا شاہانہ وقت گزارا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے ان پر زوال آیا، اور کچھ کا تو آخری وقت اللہ اپنی پناہ میں رکھے بدحالی میں، پریشانی میں، تکلیف میں، دکھ میں گزرا۔ یہ اتار چڑھاؤ، یہ عروج و زوال، یہ پوری ایک داستان جگہ جگہ پہ ہمیں معاشرے اور سوسائٹی میں نظر آتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بڑی وسعت دے اور اس کے بعد انسان کو زوال دیکھنا پڑے تو وہ وقت بڑا تکلیف والا ہوتا ہے، وہ دن لمبے ہو جاتے ہیں، وہ راتیں ختم نہیں ہوتی۔ اس وقت انسان کو تھوڑی سی دھوپ بھی زیادہ چبھتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، لوگوں کا غور سے دیکھنا بھی اسے گھورنا محسوس ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ تکلیف کا شکار ہے، زوال کے دن گزار رہا ہے۔ کوئی کسی اور طرف بھی اشارہ کرے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ انگلیاں میری جانب اٹھ رہی ہیں، تو انسان تکلیف محسوس کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی ہے تعلیم امت کے لیے۔ حضور نے دعا مانگی، اے اللہ نعمت کے زوال سے بچا کے رکھنا، زوال نعمت سے بچا۔ زوال نعمت صرف یہ نہیں ہوتا کہ پیسے چلے جائیں، یہ بھی زوال نعمت ہے کہ انسان تہجد پڑھتا تھا اور اب 5 نمازوں کی بھی توفیق حاصل نہیں، یہ بھی زوال نعمت ہے کہ مکمل اسے قرآن مجید یاد تھا، اب ایک رکوع بھی پڑھ نہیں پاتا۔ یہ بھی زوال نعمت ہے کہ اس کی زبان پر شکر رہتا تھا اور شکوہ شروع ہو گیا۔ یہ بھی زوال نعمت ہے کہ اس کے دل کے اندر ہمیشہ صبر کے جذبے موجزن رہتے تھے، لیکن اب بے چینی، بے قراری، اضطراب اور جلد بازی آ گئی۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے اللہ زوال نعمت سے بچا۔ اور رب کریم نے بھی قرآن حکیم میں جو ارشاد فرمایا نا، فرمایا وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا شکر ادا کرنا، کفر نہ کرنا، کفران نعمت نہ کرنا، شکر کرنا۔ نعمت انسان کو ملتی ہے، لیکن کچھ لوگ اس نعمت کے بارے میں فتنے اور آزمائش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بڑا بڑا عروج لوگوں کو ملا، لیکن وہ سنبھال نہیں پائے اپنا عروج، اس کا دفاع نہیں کر پائے، اس سے کوئی کام نہیں لے سکے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بلندی عطا فرمائی تھی، اس بلندی اور اس بڑی گہری چھاؤں میں لوگوں کو نفع نہیں دے سکے۔ قرآن مجید نے عروج و زوال کی جو داستان بیان کی ہے، اس میں ایک داستان بنی اسرائیل کی بھی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کو آپ دیکھیے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، میرا وہ احسان یاد کرو، میری وہ نعمتیں یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ ایک یہ دور ہے، من و سلوہ اتر رہا ہے، دریا رستہ چھوڑ رہا ہے، حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کی انہیں سایہ شفقت اور رحمت حاصل ہے، ایک یہ وقت ہے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی شروع کر دی۔ انہیں کہا کہ من و سلوہ سنبھال کے نہ رکھنا، انہوں نے ناشکری کی اور اسے سنبھال کر رکھنا شروع کر دیا۔ جو کام بھی کہا گیا اس میں نافرمانی کرتے چلے گئے۔ وہی قرآن مجید جو چند آیات پہلے کہتا ہے نا، انی فضلتکم علی العالمین، اے یعقوب کی اولاد ہم نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی، وہی قرآن مجید آگے جا کے کہتا ہے جب میری نافرمانی کی، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، فرمایا ہم نے ان پر ذلت اور مسکینی مقرر کر دی۔ جس رب نے فضیلت دی تھی، پھر اسی رب نے ان پر ذلت مقرر کر دی۔ کیوں؟ کفران نعمت کیا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، خدا کے فضل سے ملی ہوئی چیزوں کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھا ہے، مسلسل اللہ کے انبیاء کو ستایا ہے، نبیوں کا قتل تک معاذ اللہ کیا۔ یہ عروج و زوال کا عجیب رنگ دیکھو کہ انی فضلتکم علی العالمین وضربت علیہم الذلہ،
एक ही पारे में, एक ही मकाम पे। दुआ करो रब करीम जब इज्जत दे तो फिर जिल्लत से बचाए, अल्लाह जब आसानी दे तो फिर दिक्कत से बचाए, रब करीम जब रहमत करे तो फिर अपने गजब से बचाए, अल्लाह जब अता करे तो फिर अपनी नाराजगी से बचाए। ज़वाले नेमत बड़ी तकलीफ है, ज़वाले नेमत बड़ी आजमाइश है। इंसान के पास जब नेमत हो तो उससे छिन जाए, वो बड़ा तकलीफ वाला मामला है। तो नेमतें छिनती क्यों हैं, ज़वाले नेमत होता क्यों है? चंद एक बातें आपकी खिदमत में अर्ज करनी है कि इंसान से नेमतें छिनती क्यों हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब लोग नेमत की कदर नहीं ना करते, नेमत रुखसत हो जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए तो रोटी का एक टुकड़ा पड़ा हुआ था ज़मीन पर, तो हुजूर ने उठा के फरमाया, आयशा इसकी कदर करो, ये जिस घर से नाराज हो जाए लौट कर नहीं आया करते। अल्लाह ने नेमत दी है, लोग कदर नहीं करते। मैंने बहुत सारे मालदार देखे, उनके बच्चे पैसों की कदर नहीं करते, रिस्क की कदर नहीं करते, सेहत की कदर नहीं करते। अल्लाह ने अगर आसानी दे दी है पढ़ने की, लिखने की, समझने की, कदर नहीं करते। यहां तक कि कुछ लोगों को रब के बंदे मुयस्सर आते हैं, खैर सीखने का मौका मिलता है, पर बेकदरा ने कदर ना की थी ते कीती खूब तसल्ली हूं, दुनियादार पुजारी जर दे कुत्तियां दे गल टल्ली हूं, बुक बुक रोशन अखियां तकियो वेख हवेली कली हूं, कूच नसीर असां जदों कीती पै जानी थरथली हूं। नाकदरी ये भी जवाल का बायस बनती है। अल्लाह ने नेमत दी है, उसकी कदर करो, सेहत की कदर करो, आवाज की कदर करो, हिम्मत है तो उसकी कदर करो। नेमत की कदर नहीं करते लोग। पैसे से प्यार करना और है, अल्लाह के दिए हुए रिस्क की कदर करना ये और है। हम ना कदरे हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें हमारी बगैर मेहनत के हमें मिली हुई होती हैं तो हम उसका एहसास नहीं करते। कभी उस जगह खड़े होके सोचो जहां वो शख्स खड़ा है जिसके पास वो नेमत मौजूद नहीं है। मैं गाड़ी में सफर कर रहा था, बच्चा मेरे साथ गाड़ी चला रहा था, तो दो चार देहाती लोग गाड़ी के आगे वो सड़क पे खड़े थे, तो अब समझ नहीं आ रही थी कि ये आगे की तरफ जाना चाह रहे हैं कि पीछे की तरफ आना चाह रहे हैं। तो उस बच्चे ने सख्त लफ्ज़ कहे कि यार हद हो गई है, लोगों को सड़क क्रॉस करने की भी अकल नहीं। मैंने कहा पुत्र ये मकाम शुक्र था, मैंने बसों पे सफ़र किया है, मुझे इसकी तकलीफ का पता है। आपके नीचे गाड़ी है और आपको सिर्फ 2 मिनट रुकना है कि ये गुजर जाएं और आप इसी पर ही परेशान हैं। आप उनको गुजर जाने दें, आप ब्रेक लगा लें, ये आगे जाएं या पीछे जाएं, टाइम दें, कदर करें। अगर अल्लाह ने नेमत दी है उसे जाती हक ना समझें। एक तो नाकदरी ज़वाले नेमत का बायस बनती है, फिर नाशुक्री, जब लोग शुक्र नहीं ना करते फिर नेमतें चली जाती हैं। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं नेमतों में इजाफा कर दूंगा। और रब फरमाता है वाला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने कुफराने नेमत किया तो मेरा अजाब भी बड़ा सख्त है। तो इस अजाब का एक माना ये भी उलमा ने किया है कि वो नेमत तुमसे चली जाएगी अगर शुक्र नहीं करो। कुफराने नेमत करोगे, नाशुक्री करोगे, वो नेमत रुखसत हो जाएगी। बहुत सारे लोग हैं कदर ही नहीं करते। जहां भी आप हैं, जिस मकाम पर भी हैं, जहां भी हैं, आपका सीना हर वक्त चौड़ा होना चाहिए। मैं अपने दोस्तों को समझाने के लिए कहा करता हूं कि मैं नाज से कहता हूं जिस तरह के उस्ताद मुझे मिले हैं दुनिया में किसी को नहीं मिले, और जिस तरह के माँ बाप मुझे मिले हैं मेरा ख्याल है शायद किसी को ना मिले हो। और फिर उसके बाद जिस तरह के दोस्त, शागिर्द, मुरीद, प्यार करने वाले, कि देखो ना दोस्तों को जगह नहीं मिली, खड़े हैं यहाँ पे। तो मैं फिर कभी कभी नाज से कहा करता हूँ खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। आप जहां हैं, जिस मकाम पर हैं, आपकी तबीयत शुक्र के अंदर ढली हुई हो। एक हमारे यहाँ बच्चा पढ़ा करता था, तो अच्छे खाते पीते घर का था, तो हर वक्त की लड़ाई, फलानी चीज नहीं मिली, फलानी चीज नहीं मिली, हर वक्त का रट्टा। तो मदरसे में बच्चे काम लगे हुए थे, तो हमारी मस्जिद की ना, छोटी मस्जिद की खिड़कियों से मदरसा नजर आता है। मैंने उसे कहा पुत्र वो देख जरा क्या होने लगा है। तो मजदूर ने पोना खोला, दोपहर का टाइम था, फिर उसने हाथ धोए,
पोना खोला, पानी रखा, फिर वो छोटा सा तोड़ा था सीमेंट वाला, वो बिछा के उस पर वो बैठ गया। फिर उसने जब वो खोला ना पोना, तो उसमें से जो रोटी थी वो काफ़ी सारी, वो अचार वगैरह सालन वो कुछ पोने को भी लग गया था। पर उसने जिस शौक से बिस्मिल्लाह पढ़ी है ना, और जिस मज़े से रोटी खाई है ना उसने, और फिर उसे उसका तलफ़ुज़ नहीं ठीक होगा, पर लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ़ुज़ से नहीं। हो सकता है उसे सीखने की ज़रूरत हो, लेकिन उसने जब वो खा के हाथ उठाए ना, और कपड़े सारे मजदूरी से भरे हुए, और जिस ज़ौक़ से उसने आसमान की तरफ देखा, मैंने कहा पुत्र, इसको रिस्क खाना कहते हैं और इसको शुक्र करना कहते हैं। ये लाइन लगी हुई है खाने पीने वाली चीज़ों की, और मैं नहीं खानी तो मैं नहीं खानी, तो ये मेरी पसंद की नहीं है, तो ये मेरे अब्बा जी कहा करते थे, भुख लगी होवे तो हर शय दा स्वाद है, तो ना लगी होवे तो मुड़ नखरे नखरे ने, ना कदरी और ना शुक्री, ये ज़वाले नेमत का बायस बनती। कभी ना शुक्री ना करे, जो चीज़ है उस पर खुदा का ढेरों ढेर शुक्र अदा करे, और हर हाल में शुक्र अदा करे। कहे मालिक ने जो मुझे दिया है करम ही हो गया, जो अल्लाह ने मुझे अता की है उस पर उसकी रहमत हो गई, फजल हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 70,000 लोग होंगे जिन्हें रब हिसाब के बगैर जन्नत अता कर दे। फरिश्ते भी हैरान होके पूछेंगे, ओ तुम कौन हो, कोई हिसाब किताब भी नहीं हुआ। वो कहेंगे हम वो हैं जो हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करते। वजूद ढले, मैं अपने दोस्तों से कभी कभी कहता हूँ मेरा ना वजूद ढलता है। कभी आपने मोमबत्ती देखी है, उसका वजूद ढलता है। तो एक दरवेश ने कहा है वो इसलिए ढलता है कि वो समझती है मेरे ऊपर रोशनी है, उस रोशनी की वजह से वो ढलती जाती है, ढलती जो नेमत बड़ी है, मेरे ऊपर नूर है, लिहाजा वो शुक्र में सारी ढल जाती है, मिलिया मेट हो जाती है। तो मैं भी कभी कभी दोस्तों से कहता हूँ यार मेरा वजूद ढलता है खुदा के शुक्र में। कभी कभी दिल करता फटाफट सजदे में चला जाऊं, एक मिनट ना लगा। ये इदारा मुकम्मल हुआ है ना, ये हमने शुरू किया तो मुझे एक साहब कहने लगे 40-40 साल लंघ जाने ने मौलवी मसीता नहीं मुकम्मल कर दी। तो मेरे दिमाग में बात अड़ गई, फिर ये मुकम्मल हो गया, और अल्लाह के फजल से इस तरह मुकम्मल हुआ है कि उलमा देखने के लिए आते हैं और देख करके लौट के जाते हैं तो कहते हैं कमाल ही हो गई। तो मैं कहता हूँ खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहाँ मैं हूँ वहाँ शुक्र करें, जिंदगी में शुक्र का मिजाज पैदा करें, शुक्र की, और हर हाल में करें। 2 बजे रात को एक शख्स सैयद अबुल बरकात शाह साहब से मसला पूछने आ गया, तो उनके बेटे सैयद महमूद अहमद रजवी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह नाराज हो गए, कहने लगे कोई टाइम है मसला पूछने का, सवेरे नहीं पूछ सकते थे। तो सैयद साहब थे ना, कहने लगे महमूद शुक्र नहीं अदा करते, कोई अल्लाह के रसूल के दीन की बात पूछने आया, आप मकाम शुक्र पे खड़े हो ना, तो आपको जिंदगी सुकून में मिलेगी। तीसरी बात जिससे नेमतें चली जाती हैं वो तकब्बुर है। तकब्बुर सिर्फ एक जात को ज़ेबा है, मुतकब्बिर सिर्फ एक है, वो अल्लाह है। अल्लाह की शान है कि वो मुतकब्बिर है। पढ़ा है ना सूरह हशर में, उसका एक सिफाती नाम ये है कि वो, क्यों, इसलिए कि उससे बड़ा ही कोई नहीं, सारे छोटे हैं, तो वो अकबर है। तो हमसे तो बड़े ही बड़े हैं ना, बल्कि मेरे जैसे बंदे से तो सारे ही बड़े हैं ना। अब करना क्या है, आजजी। नेमतें मिले तो बंदे में आजजी आए। वो ये ना कहता फिर शुक्र है जी अल्लाह का बड़ा फजल है जी, 300 बंदे को रमज़ान में राशन बांटता हूँ, शुक्र है अल्लाह का जी, गरीबों की मदद करता हूँ, मैंने जी सारी जिंदगी बहन भाइयों का बड़ा, ये शुक्र नहीं कर रहे आप, ये आप बढ़ोतरी बयान कर रहे, तकब्बुर नहीं। ढेर सारे लोग हैं जिनके पास पैसा आया रवैया बदल गया, इक़्तिदार आया रवैया बदल गया, 4 दिन ताजगी आई रवैया बदल गया, हालात बदल गए। अगर आप नाराज ना हो तो जब तक दुख थे तस्बीह भी चल रही थी, जब तक तकलीफ थी सजदे भी हो रहे थे। आसानी हुई है तो सब भूल गए, याद ही नहीं रहा। मेरे अजीजों याद रखना कि तकब्बुर नहीं, अल्लाह की नेमत पर कभी तकब्बुर नहीं, हमेशा आजिज़ी, झुक जाना। बड़ी सादी मिसाल है और सबको याद है, दरख्त को फल लग जाए तो टहनियाँ झुक जाती हैं, और झुकने का मतलब ये होता है कि फल लगा हुआ है, और अगर दरख्त खड़ा हो, टहनियाँ भी खड़ी हों, अकड़ी हुई हों, तो उसका मतलब ये है कि फल कोई नहीं। जो बंदा आपको झुका हुआ मिले ना,
आजिज़ी करता मिले, समझो फलदार है। लेकिन अगर तकब्बुर ही तकब्बुर नजर आए माज़अल्लाह, तो फिर इसका माना ये है कि इसने अपने आप को फलदार नहीं समझा। कारून हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का मालदार है, लोग रश्क करते थे उसके पैसों पर, और ऐसा मालदार के जिसके खजानों की चाबियां ऊंट उठाया करते थे, पैसा ही पैसा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ज़कात दो, कहने लगा अब आपने माज़अल्लाह पैसे भी लेने शुरू कर दिए। ये बड़ा मसला होता है ना बाज़ लोगों को, तो बहुत सारे लोग उसके आने जाने पर रश्क करते थे, लेकिन फिर तकब्बुर किया ना उसने, नेमत पर शुक्र की बजाय तकब्बुर किया ना, तो अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया, रब करीम ने उसे ज़मीन में माल और ख़जाने समेत धंसा दिया, ज़मीन में गर्क हो गया। क्यों? कि अल्लाह की नेमत में मुतकब्बिर है। अगर आजिज़ी हो जाए इनके सारी, और यार रोब और दबदबा तो हज़रत उमर का था ना, 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत थी, दुनिया डरती थी, अमन था, उमर होती थी दुनिया में, और उमर बाग में खड़े होके कहते थे अच्छा खत्ताब का बेटा और अमीरुल मोमिनीन, अच्छा अब तू अमीर बन गया है, याद रखना, खुद अपने आप से खिताब कर, याद रखना सही सही चलना, वरना क़यामत में रब का सामना नहीं कर सकेगा। तो अपने आप से खुद एहतसाबी तकब्बुर से नेमतें चली जाती हैं, ज़वाले नेमत होता है। एक खातून है बड़ी नेक, तारीख में गुजरी हैं, तो वो कहती हैं कि मैं एक जगह ब्याह ही गई, मेरी पहली शादी हुई एक जगह पे, तो दरवाजे पे कोई भीख मांगने वाला आया और उसकी हालत बड़ी खस्ता थी, तो मेरे शौहर ने ना उसे डांट दिया। मैंने अपने शौहर से कहा अल्लाह का हम पर फजल है और इसकी हालत बड़ी पतली है, लगता है कई दिनों से रोटी नहीं खाई, तो 4 पैसे दे दे तो हर्ज क्या है। कहने लगा कतन नहीं, मैंने मना कर दिया तो ख़त्म हो गई बात। तो बीबी कहती है मेरे पास अपने ज़ाती पैसे भी पड़े हुए थे जो मेके की तरफ से मुझे मिले थे, तो ज़रा मेरा खामद साइड पे हुआ तो मैंने नज़र बचा के ना उस फ़कीर को 4 पैसे दे दिए, चूँकि ज़्यादा ही उसकी हालत बिगड़ी हुई थी। तो कहती मैं पीछे पलटी तो शौहर पीछे खड़ा था, इस जुर्म में कि मैंने एक फ़कीर को बगैर इजाज़त पैसे दिए, उसने मुझे तलाक दे दी। कहती है बड़ी तकलीफ़ में थी और अपने दिल में सोचती थी मालिक मैंने तो तेरा बंदा जान के उसकी मदद की है और मुझे ये सज़ा मिली है। फरमाती है इद्दत गुजर गई, मेरा वालिद परेशान था, फिर एक रिश्ता आया, मेरा निकाह हो गया, लेकिन अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा शौहर दिया, इतना नेक शौहर दिया, इतना कमाल आदमी। फ़इन्न मअल उसरि युस्रन इन्न मअल उसरि युस्रा, मुश्किल के बाद अल्लाह आसानी देता। कमाल शौहर अल्लाह ने मुझे दिया, नेक, साले, मोहब्बत करने वाला। फरमाती हैं उसी तरह मैं एक दिन अपने शौहर के साथ बैठी थी, दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैं शौक में उठी, अपने शौहर से कहा मैं दे के आऊं फ़कीर को। कहने लगा जितना मर्जी दे दो। कहते हैं दरवाजे पे गई तो मेरी चीख निकल गई, इसलिए कि दरवाजे पे जो मांगने आया वो मेरा पहला शौहर था। बेपरवाही वेख सज्जन दी जिथे किसे दी पेश ना जावे, उन्हें माला वाले दर दर रोले ते मंगते तख्त बिठावे। वो सजना हो किसे नु कारा मिल दई, कोई काबे हो खाली आवे। वो मेरा पहला शौहर दरवाजे इतने, वो भी तड़प गया। कल तक तकब्बुर था, गुरूर था कि हम मालदार है, हम किसी गरीब को क्या दे, लेकिन आज ये हाल है कि वो खुद दरवाजा दरवाजा भीख मांग रहा था। ना कदरी ना शुक्री, तकब्बुर, ये ज़वाले नेमत का बायस बनता है। इंसान के पास से नेमत रुखसत होने लग जाती है। एक चौथी बात जो ज़वाले नेमत का बायस बनती है वो ये होती है कि अल्लाह की नेमत को सिर्फ अपना हक समझ लेना। अल्लाह ने जो हमें दिया है ना वो सारा हमारा नहीं होता, उसमें मिस्कीन का भी हक होता है, यतीम का भी हक होता है, कमज़ोर का भी हक होता है, साइल का भी हक होता है। सख्त जुमला है पर चलो कोई बात नहीं, कभी कभी कड़वी गोली से भी फर्क पड़ता है। बाज़ लोगों को अल्लाह नेमत देता है वो सांप बन के बैठ जाते हैं, वो समझते हैं हमारा हक है और किसी को दे के एहसान जतलाते हैं। मैं एक महफिल में गया तो मुझे कहने लगे 2 उम्रे के टिकट भी हमने देने हैं तो आप निकाल के जाए। मैं कहा जिन्हों देने दे चुप करके दे दो, ये नहीं दिए जाते। आपने उसकी फोटो ही बनानी है, किसी को उम्रा करा रहे हो, चुप करके दे दो, खत्म हो गई बात। बच्चियों की, गरीब बच्चियों की शादी करानी है तो वो सारी लाइनों में बना के तस्वीरें बनाने की क्या जरूरत। आप सांप बनकर ना बैठे। अल्लाह ने जो नेमत दी है, और मिशकात में हदीस है
हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया रब तुम्हें जो रिस्क देता है तुम्हारे ज़ईफ और कमजोर लोगों की बरकत से अता करता है, तो इनकी बरकत से तो तुम्हें मिल रहा है और तुम तकब्बुर करते जा रहे हो, गुरूर कर रहे हो और तुम कहते हो नहीं ये मेरा हक था। हक नहीं था भाई, खुदा ने अपने फजल से अता किया। अच्छा फिर कुछ बंदे भूल ही जाते हैं, गांव से आकर पढ़ने वाले भूल ही गए कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। वो जद्दी पुश्ती अमीर बन जाते, वो कहते हो नहीं जी अल्लाह दा फजल है जी, दादा जी दी भी बड़ी गल सी। भाई दादा जी दी गल सिर्फ जमीन नाल हुंदी है? वैसे आप एक अच्छा इंसान का झूठ क्यों बोलते हैं? सही बुखारी में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस मरवी है, बड़ी मशहूर है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद एक किस्सा बयान फरमाया बनी इसराइल का। हुजूर फरमाने लगे 3 शख्स थे, एक कोढ़ के मर्ज में मुब्तला था, कोढ़ा था, एक गंजा था, एक नाबीना था, हर वक्त परेशान रहते थे। मेरे रब ने उनको आजमाने का फैसला किया। देखो अल्लाह के आजमाने का तरीका क्या है। एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया, सबसे पहले जिसको कोढ़ का मर्ज था उसके पास आया। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, उसने आके उससे कहा क्या चाहते हो? उसने कहा यार मुझे कोढ़ का मर्ज है, लोग मुझसे नफरत करते हैं, घिन करते हैं, काश मेरी खाल ठीक हो जाए, जिल्द ठीक हो जाए, बीमारी चली जाए। तो फरिश्ते ने हाथ फेरा, अल्लाह ने शिफा अता कर दी। शिफा किसने दी? हाथ किसने फेरा? कोई अर्ज नहीं, अगर किसी वक्त कोई बुजुर्ग दम कर दे, हाथ फेर दे, तो शिफा अल्लाह ही देता है। बुखारी में मौजूद है, जो रवायत दर्ज कर रहा हूँ। फरिश्ते ने हाथ फेरा, अल्लाह ने। अब फरिश्ता उससे पूछता है पसंद क्या है, माल कौन सा पसंद है? कहने लगा ऊंट बड़े पसंद है। तो फरिश्ते ने एक हामिला ऊंटनी उसे दी और बरकत की दुआ भी दी। अब फरिश्ता आया गंजे के पास, जनाब क्या चाहते हैं? उसने कहा मैं गंजा हूं, सर पे बाल नहीं है, उसकी वजह से चेहरे पे कोई हुस्न भी नहीं है, लोग घिन करते हैं, कभी मेरे बाल आ जाए ना। फरिश्ते ने हाथ फेरा, बाल अल्लाह ने अता किए, उसको शिफा हो गई। अब फरिश्ते ने उससे कहा कि माल कौन सा पसंद है? कहने लगा गाय बड़ी पसंद है। फरिश्ते ने तो उसको एक हामला गाय दी और बरकत की दुआ भी दी। अब फरिश्ता अंधे के पास आया, क्या चाहते हो? उसने कहा रब ने बड़ी सोनी कायनात बनाई है पर मैं देख नहीं सकता, कभी आंखें मिल जाए ना तो सारी रौनकें ही बहाल हो जाए। फरिश्ते ने हाथ फेरा, शिफा। याद रहेगा मसला, ये इतना सा मसला जिसमें लोग बड़ी जल्दी अड़ जाते हैं। फरिश्ते ने आंखों पे हाथ फेरा और अल्लाह ने शिफा अता कर दी। फरिश्ते ने कहा पसंद क्या है? कहा बकरियां बड़ी पसंद है। एक हामला बकरी भी दे दी और दुआ भी कर दी। अब वो जिसको ऊंटनी दी थी हामला, उसकी हुजूर फरमाते हैं पूरी वादी ऊंटों की भर गई, और जिसको गाय दी थी उसकी पूरी वादी गायों से भर गई, और जिसको बकरी दी थी पूरी वादी रेवड़ों के रेवड़ बकरियों के तैयार हो गए। अब रब ने फैसला किया आजमाइश करने का। मैंने बहुत पहले कहा था, बात फिर दोहराता हूं, ज़वाल इम्तिहान नहीं होता, उरूज इम्तिहान होता है। असल तो आपका पता उरूज के दिनों में चलता है। अल्लाह ने फरिश्ता भेजा, वही इंसानी शक्ल में सबसे पहले उस कोढ़ के मर्ज वाले के पास आया। कहा यार मैं मुसाफिर हूँ, कहीं सफ़र पे जाना था, तो अल्लाह की मदद आपका ताउन दरकार हुआ तो सफ़र हो सकता है, एक ऊँट मुझे चाहिए। तो उसने वही बात की जो कई अमीर लोग करते हैं, ये सही बुखारी में मौजूद। कहने लगा यार मेरे जिम्मे तो हुकूक ही बड़े हैं, सादा तर्जुमा करिए, मेरे तो खर्चे ही बड़े ने जी, तुहानू की दसी, उधर भी जा रहा है, उधर भी, ऐ भी आसमान मैं तमे है, ऐ भी मैं, इतने खर्चे हैं मेरे, ये भी करना है, वहां भी करना है। उसने वही बात सुनाई। तो वो फरिश्ता कहने लगा तू तो पहले एक कोड़ी नहीं था, तो नाराज हो गया। कहने लगा मैं तो जद्दी पुश्ती रही से आजम हूँ, बाप दादा की जायदाद है सारी जो मुझे मिली हुई। उसने कहा अगर तू झूठा है ना तो अल्लाह करे उसी तरह का हो जाए जिस तरह का पहले था। अब वो आया गंजे के पास, उससे कहा मुसाफिर हूँ, सफ़र पे जाना है, अल्लाह मदद करे, आप ताउन करें तो सफ़र आसान हो सकता है, मुझे एक गाय चाहिए।
اگر آپ دے دیں. تو وہ کہنے لگا میرے تو ذمہ حقوق ہی بڑے ہیں. اس نے کہا یار تو پہلے گنجا نہیں تھا, بیمار نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, بھوک تھی. کہنے لگا خبردار, میں تو جدی پشتی رئیس آدم ہوں, باپ دادا سے امیر ہوں. اس نے کہا اچھا اگر تو جھوٹا ہے تو ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے. اب وہ آیا نابینا کے پاس. اس نے آ کے کہا مسافر ہوں, سفر پہ جانا ہے, اللہ مدد کرے, آپ تعاون کریں تو سفر آسان ہوگا, مجھے ایک بکری چاہیے اللہ کے نام پر. تو وہ بندہ کہنے لگا رب کے نام پر تو نے لینی ہے تو ایک کیوں لیتا ہے, جتنی چاہیے لے لے. اور میں تو پہلے اندھا تھا, میں مسکین پرانا خادم, کسے در ملی نہ ٹوئی, تے واصف یار نے نظر جو کی تھی. تے واصف شروع سے پڑھتے ہیں, سے ثبوت نہ پوچھو میں تو پلا نظر کرم قد ہوئی. اے میں جانا یا دل بر جانے, غیر نہ جانے کوئی. میں مسکین پرانا خادم, کسے در ملی نہ ٹوئی. اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی, تے واصف ہی ہوئی. میں تو اندھا تھا, پلے شے ہی کوئی نہیں تھی. تو کریم نے کرم کیا, جتنی تیرا دل کرے لے جا. تو فرشتہ کہنے لگا امتحان کے لیے آیا تھا, ایک کی بھی ضرورت نہیں, لیکن تیرے دو دوست امتحان میں ناکام ہوئے ہیں, رب ان سے ناراض ہو گیا. تو کامیاب ہوا ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے. وہ دونوں جو تھے امتحان میں ناکام ہوئے تو نعمتیں چھن گئیں, صحت چھن گئی, پھر کوڑے, پھر گنجے ہو گئے. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور عطا کیا. زوال نعمت کب ہوتا ہے؟ جب لوگ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے, غریب کا, مسکین کا, لاچار کا خیال نہیں رکھتے. جیسے جیسے پیسے آتے جاتے ہیں ذاتی خرچے بڑھتے جاتے ہیں, ذاتی معاملات ہی بڑھتے جاتے ہیں. آہستہ آہستہ لوگ کہتے ہیں اوہ جی آپ کو پتہ ہے نا, پھر ہمارا گھر بڑا وسیع ہے تو بڑے مسئلے ہیں, تو بڑے خرچے ہیں, تو بڑی چیزیں ہیں. بھائیو, زوال نعمت کے معاملے میں اپنے رب کا خوف پیدا کریں, اللہ سے ڈریں ہر وقت. جب تک نعمتیں نہیں نہ ہوتی ہیں تو گزارا ہو جاتا ہے, اگر ملنے کے بعد چھن جائیں تو پھر تکلیف بہت زیادہ ہوتی. تو زوال نعمت سے بچنے کے لیے تکبر سے بچیں, ناشکری سے بچیں, ناقدری سے بچیں, اور پھر صرف اپنا حق سمجھنے سے بچیں. اسے بانٹیں, عاجزی میں رہیں, شکر میں رہیں. آپ محسوس کریں گے کہ لئن شکرتم لازیدنکم, اگر شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. نعمتیں محفوظ بھی ہو جائیں گی, ان میں اضافہ بھی ہوگا. ہر وقت نبی کریم شکر ادا کرتے, ہر وقت صحابہ اور اہل بیت مقام شکر پر فائز رہتے. یہ مقام شکر انسان کو زوال نعمت سے بچاتا ہے. اپنے آپ پر غور کریں, اگر کوئی بھی نعمت موجود ہے, وہ اولاد کی صورت میں ہے, وہ صحت کی صورت میں ہے, وہ بہن بھائی, ماں باپ, دوست احباب, بیوی بچوں کی صورت میں, جو بھی انعام اللہ کے موجود ہے, اس میں کبھی تکبر کا شکار نہ ہو, خود پسندی کا شکار نہ ہو. کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے.